Welcome my viewers once more. Today's video is about the youth parliament. My dear viewers, you know India is the largest democratic country of the world. Democracy is a form of government in which the rulers of the country are elected by its people. In Abraham Lincoln's word, democracy is a government of the people, for the people and by the people. In India, the people whose age is above 18 years elect their members of the parliament and the member of legislative assembly. They not only elect the members of the parliament, the members of the legislative assembly, they also elect the members of local bodies like their sarpanch, their members of Panchayat Smiti and Jila Parishad, as well as the members of municipality. The president is the head of our country, but his powers are constitutionally used by the Prime Minister and his cabinet ministers. The Indian Parliament has two houses. The lower house is called Lok Sabha and the upper house is called Rajya Sabha. The members of the Lok Sabha are elected directly by the people of different constituencies. Okay, they are elected for a period of 5 years, but the members of Rajya Sabha are not elected by the people directly. They are elected by the members of Legislative Assembly for a time period of 6 years. Although its 1/3 members retire after every 2 years. The present members of Lok Sabha and Rajya Sabha in India is 545 and 243 respectively. As India is the largest democratic country of the world, its common people also participate in elections very actively. Elections are held from time to time in different parts of the country, and it is generally said that the people of India are politically very aware. Okay, they are very alert and educated. They never waste their chance either to cast their vote or to contest an election, or they never get away their chance if the government, whether state or center or the local body, is not working according to the expectations of the people. So during the election, there is totally a very festive atmosphere in the country. Rallies are there, road shows are there, loudspeakers are there, banners, flags, party symbols, party manifesto, war of words, criticism attract everyone in the country. In order to train the students who are the future voters as well as the future citizens of the country, the students are trained for the qualities of leadership right from their childhood in the schools. In order to cater the students' interest in political activities, the youth parliament is also included in the curriculum of students. The youth parliament provides the student an opportunity to understand the proceedings of Lok Sabha and Rajya Sabha. They come to know a lot many things that they come to know a lot many things about democracy. Okay, the democratic setup of the country. Okay, I mean to say they get to know more deep knowledge about the political system of the country. Okay, although they read different type of books of political science, yet the student come to know a lot many things about how a particular bill is passed. Okay, such a youth parliament was organized at Government Senior Secondary School, Nathusari Kala, on 17th October 2022, in which Mrs. Sheila Vinayak, a diet representative, then
then Shri Jagdish Chandra, lecturer political science, Government Senior Secondary School, Khairpur, and Subhash Chandra, PGT political science from Government Senior Secondary School, Jodhkhan, came as the chief guest. They were amazed to see the parliament of the school, okay, which was a block level competition in which every student played the role of different parliament members, okay, the member of the speaker of the parliament, leader of opposition, prime minister, his cabinet ministers, leader of opposition, okay. All these activities were very helpful for the students, okay. In the end, they motivated the student about their different roles, okay, how they can perform better. On the whole, this was a very good activity, okay. It was a very good activity. The principal of school, Shri Satbir Singh, motivated the student for their further improvement, and the whole task was prepared by Shri Sandeep Kumar, lecturer history, Government Senior Secondary School, Government Girls Senior Secondary School, Nathusari Kala. A lot many thanks to Sandeep ji, who prepared the student for their youth parliament, and the students were also very curious to know different type of activities which are organized whenever parliament session is going on in a country like India. Let's watch the youth parliament which was organized in Government Girls Senior Secondary School, Nathusari Kala, Sirsa, Haryana on 17th of October 2022. सदन की आज की कार्यवाही शुरू की जाए। महासचिव जी नए मंत्रियों से शपथ ग्रहण करवाएं। सुश्री पिंकी, जो कि सिरसा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से युवा सांसद चुनी गई है, अब शपथ ग्रहण प्रतिज्ञा करेगी। महोदया, आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञा? और प्लीज। किस भाषा में? इंग्लिश प्लीज। I, Pinky, having been selected as the member of the lower house
मुकेश, जो कि हिसार लोकसभा संसदीय क्षेत्र से युवा सांसद का सदस्य निर्वाचित घोषित किया गया है, अब शपथ ग्रहण प्रतिज्ञा करेंगे। महोदया, आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञा? मैं शपथ ग्रहण करूंगा। किस भाषा में? हिंदी भाषा में। मैं मुकेश, जो युवा सांसद का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वाह करूंगा। जय हिंद। माननीय सदस्यगण, क्योंकि आज हम 3 महीने के बाद मिल रहे हैं, अतः इसी दौरान जापान के पूर्व प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे के दुखद निधन के बारे में सदन को सूचित करना मेरा कर्तव्य बनता है। श्री शिंजो आबे अपने देश में सदैव किसानों, श्रमिकों, वंचित वर्ग तथा गरीबों के उत्थान हेतु प्रयत्नशील रहते थे। अपने संपूर्ण कार्यकाल के दौरान भारत जापान संबंधों को मजबूती प्रदान करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। मैं शिंजो आबे को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। संविधान के दायरे में रहते हुए दृढ़ और स्वतंत्र निर्णयों हेतु उन्हें सदैव याद किया जाएगा। समाज के निम्न वर्ग की भलाई के लिए याद रखा जाएगा। भारत व जापान के संबंधों को बढ़ाने में उनका प्रमुख योगदान रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं उनके परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट करती हूँ। मैं स्वर्गीय शिंजो आबे, जिनकी अकस्मात मृत्यु से हम बहुत आहत हैं, मैं उनकी मृत्यु से बहुत आहत हूँ। वे एक वैश्विक नेता और बहुत अच्छे प्रशासक थे। उन्होंने अपने जीवन में जापान और दुनिया को बेहतर बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे अभी भारत जापान एसोसिएशन के अध्यक्ष बने थे। मैं उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। Secretary General sent the condolence to the bereaved family. यस मैडम। अब सारा सदन श्री शिंजो आबे की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट मौन धारण करेगा। प्रधानमंत्री जी नए मंत्रियों का परिचय कराएं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे व आपके माध्यम से अपने साथियों का सदन में परिचय करवाने जा रही हूँ। सुश्री विजेता कृषि मंत्री, सुश्री फरजाना संसदीय कार्य मंत्री, प्रश्न का प्रारंभ किया जाए। प्रश्न संख्या 101 सांसद सुश्री इंदु। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, नई शिक्षा नीति को लागू करने के बारे में मैं पूछना चाहती हूँ, क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि नई शिक्षा नीति को कितने राज्यों में लागू कर दिया गया है, व कितने राज्यों ने नई शिक्षा नीति को अभी तक लागू नहीं किया है। इन सब की डिटेल सदन में उपस्थित की जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि मेरे साथी नई शिक्षा नीति के बारे में सरकार से पूछ रहे हैं, मैं भी इसी विषय पर जानना चाहती हूँ कि जब सरकार के पास नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए स्कूलों में पर्याप्त संसाधन ही नहीं है, मौजूदा समय में विद्यार्थी अध्यापकों की कमी से स्कूलों में जूझ रहे हैं, तो व्यावहारिक रूप से नई शिक्षा नीति को धरातल पर लागू करना कहाँ तक संभव हो सकेगा? मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय,
अध्यक्ष महोदय, शिक्षा भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विषय होने के नाते गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना केंद्र व राज्य सरकार दोनों की साझी जिम्मेवारी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए विभिन्न संस्थाओं को मिलकर काम करने की जरूरत है। इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से आपसी सामंजस्य के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए विभिन्न संस्थाएं, शैक्षणिक बोर्ड, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थान आदि को सामंजस्य के साथ आगे बढ़ना होगा। संबंधित विभागों को इस पॉलिसी को लागू करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं तथा धीरे धीरे देश के अलग अलग भागों में यह सब जारी करने का प्रयास है। साथ ही मैं सरकार को विश्वास दिलाती हूँ कि विद्यालयों में अध्यापक व संसाधनों की कमी नहीं रहने दी जाएगी। First supplementary, Miss Preeti. Honorable Speaker Madam, will the Minister of Education be pleased to state whether there are reasons for the abolition of M.Phil in all courses in all subjects? If not the reasons thereof or any other as a subsidiary course between PG and PhD? If so, the details thereof. Minister, please. अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्रालय ने बोर्ड के अप्रूवल के बाद नई शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को घोषणा की है, जो कि मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उसमें यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि उच्च शिक्षण संस्थान अपनी सुविधा अनुसार अलग अलग प्रोग्राम चला सकते हैं, जैसे कि जिन छात्रों का दूसरा वर्ष पूर्ण रूप से शोध कार्य के लिए समर्पित है, उन छात्रों के लिए इस डिग्री को जारी रखा जा सकता है। जो छात्र अपनी बैचलर डिग्री रिसर्च से पूरी करते हैं, उनके लिए अलग से 1 वर्ष का मास्टर प्लान लागू किया जा सकता है। इसके अलावा बैचलर और मास्टर डिग्री का एक साथ 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स लागू किया जा सकता है। एमफिल को पूरी तरह से डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। Honorable members, I have to make an announcement in front of you. From my side and honorable members of Parliament, I welcome His Excellency Maldives Parliament Speaker Mohammed Nasir and his assistants of Maldives Parliament, who are on a tour India as our guests. I welcome you in the house. We wish you a very happy and fruitful stay in our country. And you will send our hearty best wishes to the government and friendly people of Maldives. प्रश्न संख्या 102, मिस दीपांशी। माननीय अध्यक्ष जी, क्या माननीय रक्षा मंत्री जी यह बताएंगे कि सरकार ने देश की जनता को हर साल 1 करोड़ नए रोजगार देने का वादा किया था। मैं पूछना चाहूँगा कि रक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में घोषित अग्निपथ योजना के अंतर्गत केवल 1 वर्ष सैनिकों की भर्ती सेना में की जानी है। क्या सरकार का यह कदम बेरोजगारियों के साथ अन्याय नहीं है? क्या सरकार के पास इस प्रश्न का उत्तर है कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत केवल 4 वर्ष सेवा देने के उपरांत योजना के अंतर्गत होने वाले नवयुवकों का भविष्य किस प्रकार सुरक्षित हो सकेगा? रक्षा मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन में यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि सरकार रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करके प्रति वर्ष 1 करोड़ नए रोजगार लोगों को प्रदान करने के वादे पर आज भी कायम है। सेना की औसत आयु आदर्श स्तर तक कम करने हेतु लागू की जा रही अग्निपथ योजना इसी संकल्प को आगे बढ़ाने की तरफ एक कदम है। इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष 46,000 युवाओं को सेना में अपनी सेवाएं देने का अवसर मिलेगा। इस योजना के माध्यम से अधिकाधिक बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर देना ही सरकार की प्राथमिकता है। खैर, अग्निपथ योजना के अंतर्गत भर्ती होने
वाले युवाओं के भविष्य को लेकर सरकार गंभीर है। अग्निपथ योजना के अंतर्गत 4 साल के सेवा कार्य पूर्ण होने के उपरांत भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 25% युवाओं को अपनी सेवाएं आगे जारी रखने का अवसर मिलेगा। शेष 75% सेवानिवृत्त होने वाले युवाओं को रिटायरमेंट फंड के रूप में एक मुश्त राशि प्रदान की जाएगी, जिससे वे अपना खुद का रोजगार भी शुरू कर पाएंगे। इन्हें राज्यों में केंद्रीय मंत्रालयों की नौकरियों में भी प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें पूर्व सैनिक कोटे के तहत आरक्षण का लाभ भी इन्हें प्रदान किया जाएगा। प्रश्न संख्या 103 मिस विजयलक्ष्मी। माननीय अध्यक्ष जी, संसद की सहमति के बाद महिला विधेयक 2005 पारित किया गया है। मैं माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि क्या यह विडंबना नहीं है कि औरतों और लड़कियों के लिए इतने कानून होने के बाद भी उन्हें प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है, चाहे वे घर के अंदर हो या बाहर, वे हर जगह असुरक्षित हैं। यहाँ तक कि वे माँ के घर में भी असुरक्षित हैं। क्या माननीय गृह मंत्री जी इस पर प्रकाश डालेंगे? मिस्टर प्लीज। हाँ, कोई भी कानून अपने आप में तब तक प्रभावी नहीं हो सकता जब तक कि महिलाओं के पहचान के संबंध में लोगों की बुनियादी सोच में बदलाव नहीं आता। इसके लिए हमें समाज में एक क्रांतिकारी आंदोलन की जरूरत है और इसकी शुरुआत हमें खुद से ही करनी होगी। महिला संरक्षण विधेयक 2005 महिलाओं को घरेलू हिंसा के खिलाफ कानूनी रूप से मजबूत बनाता है और उनका सशक्तिकरण निश्चित रूप में महिलाओं को समान अधिकार देता है। मैं सदन के सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सरकार द्वारा चलाई जा रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं इसी दिशा में सरकार की मंशा को जाहिर करती है, ताकि वे समाज में पुरुषों के साथ कदम मिलाकर चल सके। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि साल 2020 से 21 तथा 21 से 22 के दौरान कोविड-19 की स्थिति के चलते ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण के दौरान पीछे रह गए विद्यार्थियों हेतु सरकार के क्या प्रयास रहे? मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को ये सूचित करना चाहती हूँ कि सरकार ने कोविड-19 की वजह से शिक्षा से वंचित रह गए विद्यार्थियों के लिए अब विद्यालयों में विशेष कक्षाओं के आयोजन पर बल दिया है। सरकार द्वारा कुछ ही छात्र वर्गों को टैबलेट तथा इंटरनेट सुविधाएं प्रदान की है। संबंधित विभागों को ऐसे विद्यार्थियों के लिए ब्रिज कोर्स चलाने के लिए निर्देश दिए हैं। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन 1 मिस प्रीति। Honorable Speaker Madam, will the Minister of Education be pleased to state whether the government has made use of the online education facilities available for school children in the country when schools were closed since March 2020 during the COVID-19 pandemic? If so, the details thereof. एजुकेशन मिनिस्टर प्लीज। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगी कि कोविड-19 की वजह से छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री जी की आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत पीएम ई विद्या पोर्टल लॉन्च किया गया है। वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म अभियान के अंतर्गत स्कूली विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण ई कंटेंट उपलब्ध कराने के लिए दीक्षा ऐप लॉन्च की गई है। एनसीईआरटी की सभी किताबों को QR कोड के साथ प्रकाशित करवा दिया गया है, जिससे बच्चे ई कंटेंट को आसानी से देख सकते हैं। पहली और 12वीं तक के सभी बच्चों के लिए टीवी चैनलों पर पाठ्यक्रम प्रसारण के साथ साथ दूर दराज इलाकों के लिए रेडियो पर भी पाठ्यक्रम के आकाशवाणी द्वारा प्रसारण जारी कर दिया गया है। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए अलग से स्पेशली डिजाइन प्रोग्राम चलाए गए हैं। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन 2 मिस निर्मला। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, क्या कौशल और उद्यमशीलता विकास मंत्री यह बताएंगे कि कोविड-19 की वजह से कितने युवा इस दौरान बेरोजगार हुए हैं? कोविड-19 की वजह से उत्पन्न हुई बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए उन्होंने क्या रणनीति बनाई है? क्या ऐसे युवाओं के लिए स्किल ट्रेनिंग या अन्य तरह का
का कोई प्रोग्राम चलाने की सरकार की योजना है? यदि हाँ तो उसकी जानकारी दी जाए। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कोविड-19 की वजह से लेकर मार्केट में बहुत सारी समस्याएं आई हैं। लॉकडाउन की वजह से कौशल विकास योजनाएं भी प्रभावित हुई है। कोविड-19 महामारी से नौकरियों को कम से कम करने के लिए सरकार द्वारा इस दिशा में कई प्रयास किए गए हैं। अल्पकालीन और दीर्घकालीन समय के लिए ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। कोविड-19 के लिए कैश कोर्स प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं, जिसमें इच्छुक लोगों को ऑनलाइन माध्यम से ट्रेनिंग दी जा सके। प्रश्न संख्या 105 मिस एकता। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री से यह पूछना चाहूंगी कि संसदीय मंत्रालय द्वारा आयोजित की जा रही युवा संसद प्रतियोगिता का क्या उद्देश्य है? इस योजना को संपूर्ण देश में लागू करने हेतु सरकार की ओर में हाल ही में क्या प्रयास किए गए हैं? संसदीय कार्य मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन में ये स्पष्ट करना चाहूंगी, संसदीय कार्रवाई मंत्रालय द्वारा आयोजित की जा रही युवा संसद प्रतियोगिता का उद्देश्य है युवा विद्यार्थियों में संसद और राजनीति के प्रति रुचि पैदा करना, युवा विद्यार्थियों को संसद की कार्रवाई में अवगत करवाना, युवा विद्यार्थियों को अवगत करवाना कि कैसे शासक जनता की समस्या को मदद के सामने रखते हैं और लोगों को जागरूक बनाते हैं। सरकार इस योजना को संपूर्ण देश में लागू करवाने हेतु लगातार प्रयास कर रही है। इस हेतु संसदीय कार्रवाई मंत्रालय द्वारा विशेष रूप में एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से विद्यालय अपने स्तर पर युवा संसद का आयोजन करके उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करेंगे। मूल्यांकन के उपरांत चयनित विद्यालयों को संसदीय कार्रवाई मंत्रालय द्वारा प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। पूरक प्रश्न 1 मिस सिंधु। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी यह बताएंगे कि क्या राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस योजना को लागू करने के लिए आर्थिक अनुदान दिया जा रहा है? संसदीय कार्य मंत्री जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हाँ, हम राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाते हैं। हमने इस योजना को लागू करने हेतु सहायता भी करते हैं, जैसा कि युवा संसद के लिए साहित्य सामग्री उपलब्ध कराना, भाग लेने वाले विद्यालयों को पिछले वर्ष भाग ले चुके विद्यालयों की सीडी व वीडियो उपलब्ध कराना आदि। अब माननीय युवा सांसद मिस मुकेश देवी, मिस प्रीति, सुश्री इंदु, माननीय प्रधानमंत्री जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के अध्यक्ष भी हैं, का ध्यान देश के विभिन्न भागों में आ रही बाढ़ की ओर आकर्षित करेंगे। श्री मुस्कान देवी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कई सालों से भारत में बड़े स्तर पर प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है, चाहे 1999 में उड़ीसा में आया चक्रवात हो, या 2001 में गुजरात में आया विनाशकारी भूकंप, या 2004 में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में आई भयंकर सुनामी हो, और अभी हाल ही में 2021 में गुजरात में आया चक्रवात और अप्रैल 2021 में ही असम में आया विनाशकारी भूकंप को इनकी वजह से बहुत सारी जानें गई है और बहुत सारा आर्थिक नुकसान हुआ है। मैं आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या उनकी सरकार ने इस तरह से विनाश से बचने के लिए कोई ठोस कदम उठाए हैं? क्या सरकार ने माध्यम क्रियाकलापों की वजह से आने वाली इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए कोई रणनीति बनाई है? सरकार ने इन सभी तरह की आपदाओं से निपटने के लिए कोई विशेष एजेंसी बनाई है? अगर हाँ तो उसने अभी तक क्या कार्य किए हैं? प्राइम मिनिस्टर प्लीज। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विपक्ष के साथी से पूरी तरह सहमत हूँ। प्राकृतिक आपदाएं मानव जीवन की शुरुआत से ही घटित होती रही हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं का किसी भी स्थान
बार बार आना जनधन की हानि का कारण बनता है और इसे रोकने की जरूरत है। मैं सदन को यह बताना चाहूंगी कि आपदा प्रबंधन को पहली बार 1878 में प्रथम अकाल कमीशन की सिफारिश पर भारतीय प्रशासन व्यवस्था में लागू किया गया। आजादी के बाद से गृह मंत्रालय को प्राकृतिक आपदाओं से निपटने का कार्य सौंपा गया है। पहली बार 2016 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना को रिलीज किया गया। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य भारत को प्राकृतिक आपदा मुक्त बनाना तथा प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान, जनधन के नुकसान को कम करना है। इस योजना को 2018 में अपडेट किया गया। प्रथम पूरक प्रश्न मिस अनसुया देवी। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, सीबीएसई ने स्कूलों में आपदा प्रबंधन को एक विषय के रूप में लागू किया, परंतु धरातल पर विद्यार्थियों को इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। तो क्या केवल इसे नाम के लिए पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है? और इस तरह यह आपदा प्रबंधन में छात्राओं की सहायता कैसे करेगा? प्रधानमंत्री जी। श्रीमान जी, मैं सदन को यह बताना चाहूंगी कि राष्ट्रीय आपदा का करिकुलम UNDP द्वारा तैयार किया गया, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए छात्राओं को तैयार करना है, ताकि वह प्राकृतिक आपदाओं के समय विद्यालय से प्राप्त ज्ञान और कौशल का उपयोग कर प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने में कर सके। और मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि वह आकलन करें कि क्या इस योजना को विद्यालय में प्रभावी ढंग से लागू किया गया है या नहीं, और इसको प्रभावपूर्ण तरीके से लागू करवाएं। जो कमियां रह गई हैं उन्हें दूर किया जाए। प्रश्न संख्या 106 विपक्षी सांसद। टेबल जोर से खड़काएं। प्रश्न संख्या 106 विपक्षी सांसद। लगता है विपक्षी सांसद सदन में उपस्थित नहीं है। प्रश्न संख्या 160 श्री अनसुईया। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मैं पर्यावरण मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अस्पतालों और अन्य मेडिकल बायो एजेंसियों द्वारा बायोमेडिकल वेस्ट पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा उभरा है। क्या मंत्री जी ये बताएंगे कि सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है? क्या बायोमेडिकल वेस्ट से निपटने हेतु कोई खास नियम बनाया गया है? पर्यावरण मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रत्येक सरकार ने अपने कार्यकाल में केवल एक बार प्रयुक्त होने वाले प्लास्टिक को नियंत्रण करने हेतु कई प्रकार के कानूनी प्रावधान किए हैं। संसद में उपस्थित सभी सदस्यगण मुझसे इस बात पर पूर्णतः सहमत होंगे कि किसी कानून की सफलता तभी संभव है जब हम सभी नागरिक अपने कर्तव्यों को समझकर ईमानदारी से उनका पालन करें। हर मोहल्ले में यदि हम प्लास्टिक बैग का प्रयोग न करें तो कोई भी कारण नहीं है कि प्लास्टिक को बंद करने का ये अभियान राष्ट्रीय आंदोलन का रूप न ले ले। भावी नागरिकों को हम घर तथा स्कूल में ही इस दिशा की ओर जिम्मेदार तथा जागरूक बना सकते हैं। पूरक प्रश्न मिस विजयलक्ष्मी। माननीय अध्यक्ष जी, आसपास जिधर भी नजर डालते हैं उधर प्लास्टिक के बैग ही बैग दिखाई दे रहे हैं। मैं माननीय पर्यावरण मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि उनका मंत्रालय प्लास्टिक से उत्पन्न खतरों के प्रति गंभीर है या नहीं। यदि हाँ, तब कोई कठोर कदम क्यों नहीं उठाई जा रही है? यदि आपके मंत्रालय ने इस संबंध में कोई कठोर कदम उठाए हैं तो वे क्या है? कृपया मुझे प्रकाश करें। पर्यावरण मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने 1 जुलाई 2022 से केवल एक बार प्रयुक्त होने वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इससे हमारे पर्यावरण को बचाने में काफी सहायता मिलेगी, परंतु यह अभियान भी तभी सफल होगा जब हम सभी लोग सब्जी व अन्य चीजें खरीदते समय दुकानदार से प्लास्टिक बैग की मांग न करके उसके स्थान पर खुद अपने घर से ही कपड़े से बना थैला लेकर बाजार जाएं। प्रश्न संख्या 107 मिस सवीना। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि वर्तमान समय में महंगाई के जो हालात हैं उसमें एक आम आदमी कैसे गुजारा करे?
डीजल, पेट्रोल, आम किसान के लिए खाद बीज, यहाँ तक कि किसान के लिए दाल सब्जी के आसमान भी भाव छू रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार महंगाई नियंत्रण के लिए कोई काम कर रही है? वह सरकार ने आम आदमी की रसोई लागत को कम करने के लिए क्या कदम उठाए हैं? सरकार ने आम आदमी रसोई लागत को कम करने के लिए क्या कदम उठाए हैं और उसके बारे में संसद को जानकारी दें। प्रधानमंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार आम आदमी की ही सरकार है। सरकार की हमेशा कोशिश रही है कि गरीब मजदूर भी स्वाभिमान के साथ अपना जीवन बसर कर सके। सरकार ने कोविड काल में जमीनी स्तर पर इस दिशा में एक प्रयास किए हैं। जरूरतमंद परिवारों को सस्ते दरों पर रसोई का सामान उपलब्ध कराया गया। सरकार की उज्जवल योजना इसी और एक कदम है। सरकार ने कौशल विकास के द्वारा अनस्किल्ड लोगों को दक्षता प्रदान कर उनकी आमदनी बढ़ाने का काम किया है। सरकार डीजल, पेट्रोल व गैस पर निर्भरता कम करने के लिए सोलर क्रांति पर काम कर रही है। जल्द ही परिणाम आने लगेंगे। प्रश्न संख्या 108 मिस रेखा। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि हाल ही में भारत में गायों में एक जानलेवा बीमारी लंपी रोग फैला हुआ है, जिससे पशुपालकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। महोदया, जहाँ भारत में एक तरफ गायों की माता के रूप में पूजा की जाती है, वहीं गायों की हालत में सुधार के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस दिशा में गंभीर है? सरकार ने क्या आवश्यक कदम उठाए हैं? क्या पशुपालकों को हुए नुकसान की भरपाई की दिशा में कुछ किया जा रहा है? स्वास्थ्य मंत्री जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को बताना चाहती हूँ कि सरकार हर तरह की समस्याओं से निपटने के लिए गंभीर है। जैसे ही इस बीमारी को स्वास्थ्य विभाग द्वारा नोटिस किया गया है, आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित विभागों को जारी कर दिए गए थे। अब विभाग द्वारा गायों की वैक्सीन का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। रोग पूरी तरह से नियंत्रण में आ गया है तथा प्रभावित पशुओं की संख्या लगातार घट रही है। पशुपालकों को मुआवजा देने के लिए हुए नुकसान के आकलन हेतु कमेटी गठित कर दी गई है। उसके दिशा निर्देशों के आधार पर आगामी कार्यवाही की जाएगी। प्रश्न संख्या 109 मिस अंतिमा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहती हूँ कि एक और जहाँ भारत दुनिया का सबसे अधिक युवा शक्ति वाला देश है, वही सरकार इस युवा शक्ति को सही दिशा नहीं दे पा रही है। वास्तव में भारत सबसे अधिक युवा बेरोजगारों वाला देश बन गया है। क्या सरकार के पास भारत की युवा शक्ति को रोजगार देने हेतु कोई ठोस रणनीति है? इसकी जानकारी संसद में रखी जाए। प्रधानमंत्री जी। अध्यक्ष जी, ये विपक्ष के झूठे आरोप और झूठे तथ्य की बौखलाहट के सिवा कुछ नहीं है। भारत हाल ही में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। अध्यक्ष जी, भारत सरकार की हालत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना देश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में एक अहम योगदान दे रही है। भारत सरकार अब रेड टेप की जगह रेड कार्पेट की सरकार है। विदेशी कंपनियों ने भारत में आकर इन्वेस्ट करने की होड़ लगा दी है, जो भारत के लाखों युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार उपलब्ध करा रही है। प्रश्न संख्या 110 मिस सवीना। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि हाल ही में मानसून की वजह से उत्तर भारत में अतिवृष्टि की वजह से फसलें तबाह हो गई है। भारत का किसान जो पहले से ही गरीबी में जी रहे हैं, उसके लिए ये मार सहना बहुत कष्टकारी है। सरकार इस दिशा में क्या काम कर रही है? क्या सरकार ने फसलों के नुकसान का कोई आकलन किया है? किसानों को इससे उभरने के लिए क्या सहायता की जा रही है? कृषि मंत्री जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर शुरू से ही प्रयासरत है।
सरकार ने देश के लाखों किसानों का फसल बीमा करने के तहत फसली बीमा करके पहले से ही उन्हें चिंता मुक्त कर दिया है। ब सरकार ने फसलों के नुकसान के आकलन के लिए विशेष गिरदावरी का आदेश दिया है। स सरकार किसानों को उनकी फसल का उचित मुआवजा देकर उनको हुए नुकसान की भरपाई करेगी तथा देश के किसान को हारने नहीं दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 111 मिस योगिता। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि सरकार देशवासियों के मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने में नाकाम रही है। देश आज व्यवस्था सुविधाओं के अभाव से जूझ रही है। देश के अस्पतालों की हालत दयनीय है। मैं सरकार से जानना चाहती हूँ कि बेहतरी के लिए सरकार ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया है। स्वास्थ्य मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने कोविड-19 के दौरान अपनी स्वास्थ्य सेवाओं से पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ी है। भारत से पूरे विश्व में अपनी सतह पर भारत इतने बड़े सतह पर देश की जनसंख्या को मुफ्त टीकाकरण करवाने वाले देशों में दुनिया में अग्रणी है। हमारी सरकार देश में हर साल नए हॉस्पिटल व विश्व स्तरीय चिकित्साई सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। मैं सदन को बताना चाहती हूँ कि भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों को एक बड़ी संख्या भारत में सस्ती और बेहतरीन चिकित्सा सुविधा के लिए आने वाले लोगों की होती है। भारत में सबसे ज्यादा डॉक्टर बनाने वाला देश है तथा भारत के निर्यात में बड़ी संख्या भारत में सस्ती और बेहतरीन चिकित्सा सुविधा के लिए आने वाले लोगों की होती है। भारत में सबसे ज्यादा डॉक्टर बनाने वाला देश है तथा भारत के निर्यात में दवाइयों का एक बड़ा हिस्सा होता है, जो भारत की चिकित्सा सुविधा का नेतादार का उदाहरण है। Now the question hour is over. One more question, please. No more supplementary question, please. Now the Minister of Agriculture will lay the paper on the table of the House Minister for Agriculture. Miss Vijeta. Honorable Speaker Madam, I beg to say On the table. a copy of each of the following papers: Hindi and English version. Annual report of the Department of Agriculture, Research and Education and Indian Council of Agriculture Research, New Delhi for the years 2021 and 22, along with audited accounts and the comments of Control and Auditor General thereon. Now, respected members of opposition, Miss Indu, introduce the non-government private member resolution. Respected Speaker Madam, I beg to move for leaves to introduce a bill further to amend EPF and Miscellaneous Provision Act 1952. The question is, there leaves to be granted to introduce a bill further to amend the Employees Provident Fund Act, the Miscellaneous Provision Act 1952. Those who are in favor, please say yes. Those who are against, please say no. No. I think noes have it, noes have it, noes have it. So the resolution is rejected. अब सदन में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बिल विधेयक पर विचार किया जाएगा। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिस तनीषा। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बिल संबंधी विधेयक 2022 को पूरे स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बिल संबंधित संशोधन विधेयक
चाहती हूँ। अब सदन में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बिल विधेयक पर विचार किया जाएगा। विदेश मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, देश की सुरक्षा एजेंसियों व अन्य विभागों से प्राप्त विभिन्न सुझावों के आधारों पर इस बिल में कई प्रावधान किए गए हैं। सामूहिक विनाश के हथियार जैविक, रासायनिक और परमाणु हथियार हैं। नए कानूनों के माध्यम से ऐसे हथियार के वित्त पोषण पर भी रोक लगाने का प्रावधान किया गया है व सामूहिक संहार के हथियारों एवं उनसे जुड़ी प्रणालियों के प्रसार के वित्त पोषण करने को रोकने का प्रावधान। सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी आपूर्ति प्रणाली कानून 2005 के प्रावधानों में संशोधन किया गया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मुझे इस बिल के कुछ प्रावधानों के बारे में शंकाएं हैं। Honorable Speaker Madam, I request opposition leader to appraise the House about weapons of mass destruction bill in detail. आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मैं विदेश मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इस बिल की विशेषताएं सदन को बताएं। Honorable Speaker Madam, thank you for giving me an opportunity to speak on the bill to amend the weapons of mass destruction and their delivery system, Prohibition of Unlawful Activity Act 2005. Madam, the House is aware that India implements its international obligation, responsibility, and this is recognized by international community. Weapons of Mass Destruction and Delivery System Act 2005, Prohibition Unlawful Activities in respect of biological, chemical, in respect of and their delivery systems. Controls because we thought at that time in 2005 mainly in terms of trade of goods and technologies. In recent years, however, international regulation relating to weapons of strength, in particular the recommendation of the UN Security Council and the Financial Action Task Force have mandated provisions against financing in relation of these weapons. Presently, there are no specific provisions in the 2005 legislation relating to prohibition of financing. क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि इस विधेयक में किए जा रहे संशोधन से क्या लाभ होंगे? माननीय अध्यक्ष जी, मैं विपक्षी नेता को बताना चाहूंगी कि संशोधन से निम्नलिखित लाभ होंगे। इस विधेयक के पारित होने से देश की वैश्विक स्थिति मजबूत होगी। देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 17 साल पुराने कानून में बदलाव जरूरी हो गया है। इस बिल में मौजूदा कानून में एक नई धारा 12A डाली गई है। इसके जरिए कोई भी व्यक्ति किसी भी सामूहिक विनाश के हथियार संबंधित किसी गतिविधि को वित्त पोषित नहीं कर सकेगा। विधेयक से सामूहिक संहार के हथियारों एवं उनसे जुड़ी प्रणालियों के प्रसार के वित्त पोषण को रोकने का प्रावधान किया गया है। इसमें ऐसे वित्त पोषण का निवारण करने के लिए केंद्र सरकार को निधियों एवं अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों या आर्थिक संसाधनों पर रोक लगाने, अधिग्रहण या पूर्ति करने का अधिकार दिया गया है। प्रस्ताव यह है कि विधेयक पारित किया जाए। जो इसके पक्ष में है कृपया हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है कृपया ना कहें। मैं समझती हूँ कि हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है। अब सदन की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।